کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، بچوں کا ٹیک کیئر کرنا، بعض لوگوں کو تو جاب کرنا پڑتا ہے، گھر میں کھانا پکانا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا دعائی بتائی تھی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1 الرحیم، اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس کی تفسیر کر لی تھی۔ تو الحمد، آپ لوگوں کے پاس جو بھی مصحف ہوگا، جو بھی آپ اس میں اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الحمد کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی۔ آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں۔ تمام کے تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ۔ لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے۔ اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، مینز کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی، تو کوئی بھی بک ہے، رائٹ؟ اور جب آپ اس کو the book کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے، یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے۔ یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ، آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب، اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اٹسیلف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اور اب سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اب نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، ادھر پھریں ادھر اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمد وہ شکر ہے، آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی۔ یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی، یا کسی کا بچہ بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا۔ کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو، کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بچے کی فیس دینی ہے، اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے، تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے،
जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं। और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह सुब्हाना ताला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला, मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं। किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह सुब्हाना ताला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों की कितनी बेशुमार उसकी रहमतें। और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला, अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना, तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमद किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह जो है ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिफाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ आएंगे ना, तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है? खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना, तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आएगा, आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें, मालिक का ऑपोजिट कौन है? मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी गुलाम देखे नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की ज़िंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी उसके मालिक के हाथ में है। उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को ला के देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना। पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे, हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए, इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का, तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस हो, ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया। हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ।
एक रोब आता है ना अंदर हमारे। और इसके साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला अपनी एक और सिफ्त बयान करते हैं कि डरो नहीं, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आलमीन का भी मालिक हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अब देखिए, एक अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ रहमान कह देते तो काफ़ी था, अब दोनों का मादा एक है, रा हा मीम दोनों का, जो माँ का रहम होता है ना जिसमें बच्चा होता है, ये उसका रूट वर्ड जो है ना वो उधर से ही है। रहमान जो है उसमें शिद्दत है, उसकी रहमत में शिद्दत है। और रहीम जो है ना वो अल्लाह सुब्हान ताला की मुसलसल रहमत को कहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ। मालिकी मालिक हूँ, यौमिद्दीन यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। ये एक नया लफ्ज़ होगा जो आप याद अगर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सूरत फातिहा में ये एक नया लफ्ज़ है बस, बाकी सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हान ताला जो कह रहे हैं ना कि मैं मालिक हूँ, देखें ये दिन जो है ये बड़ा डर वाला दिन होगा। और अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं यहाँ पे कि उस दिन का भी मालिक मैं हूँ, जिस दिन तुम अपना हिसाब किताब लेके आओगे। देखो किसी के साथ जुल्म ना करना, देखो किसी के साथ ज़्यादती ना करना। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमा यकुमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व काला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हान ताला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान ताला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरु मा कद्दमत यदाहु व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी ही, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्या सिर्फ का तेरी, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्तईन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है
जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हान तआला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हान तआला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था। और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए। और बहुत आसान है, जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे? मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्तईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हान ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हान ताला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये
अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूंगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं। हमें तो दुआएं करने का तरीका, देखिए वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं, हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता। अब ज़रा वो याद करें जो मैंने पहली आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब हम रब के सामने यूँ खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है, वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुँचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज़ को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए ज़िल्लत का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देते हैं, अगर हमारा कारोबार में तरक्की और बरकत देते हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला ना हुआ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं हलाल रिस्क ना कमाए ना, वो रिस्क हमारे लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा। और अगर वो रिस्क पे हदायत का मैजिक स्टोन लग जाता है तो वो रिस्क हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हर वो नेमत जो हदायत के बगैर है हमारे लिए अजाब है। इसीलिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं हमें सिखाया कि अल्लाह ताला से हम मांगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे सीधी राह की। हम अल्लाह ताला से ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह ताला हमें पैसा दे दे, अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े घर दे दे, कारोबार दे दे, ये नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हदायत मांग रहे हैं, क्योंकि इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। जिसको ये नेमत मिल गई उसको पूरी कायनात मिल गई। इसलिए जब भी ये दुआ करें, देखिए ज़िंदगी में हदायत हमें हर लम्हे ज़रूरत होती है। हमने किसी जॉब पे जाना है तब भी हमें ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि ये जॉब हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं, वो हमें पढ़ने भी देंगे कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये शादी ठीक हो जगह पे मैं कर रही हूँ कि नहीं, हर जगह पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तू हदायत दे दे, तू सीधा रास्ता बता। देखिए सीधा रास्ता कौन है? सीधा रास्ता है ना, अल्लाह ताला मुस्तकीम कहते हैं, वो रास्ता जो सीधा जाता है। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा एक ये सीधा रास्ता, आप इतना सा बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ से हटे है ना, ये रास्ता तो सीधा जा रहा है ना, ये शुरू में तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हटे, वो ऐसा ऐसा हटते 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 ये रास्ता बहुत दूर निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कि जो मुस्तकीम पे है ना, जिस रास्ते पे है, वो भी अल्लाह से इसीलिए दुआ करे, बार बार दुआ करे कि अल्लाह ताला इस रास्ते पे रहने देना। या अल्लाह दुनिया में बड़ी टेम्पटेशन है, मुझे नहीं समझ आती कई दफ़ा, अल्लाह ताला मुझे आप इसी रास्ते पे मुझे गाइड करते रहना, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो मांग लिया ना हदायत का, और फिर हम और उसको बताते अल्लाह सुब्हाना ताला से वजाहत करें कि सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अनमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अनमता जो है ये फेले माजी है। अब देखिए इसमें एक बड़ी हिकमत है
کہ अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके हैं, आजकल जो लोग हैं उनका रास्ता नहीं है अभी यहाँ पे हमें कह रहे। क्योंकि देखिए जब हमने सिरात मुस्तकीम की बात की थी ना कि एक सीधे रास्ते पे, अगर हमें नहीं पता कि आज हम सीधे रास्ते पे, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएं और फिर बहुत दूर हो जाएं, और जो लोग फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे साथ साथ उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कामयाब हो चुके, इनाम किन लोगों पर था? जो अंबिया थे, जो शोहदा थे, जो औलिया थे, सिद्दीकीन थे, वो अल्लाह ताला ने जिनको कामयाब करार दे दिया। ये रास्ते पे चलने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने कहा कि समेना व अताना, अल्लाह सुब्हाना ताला हमने सुना और हमने अमल कर लिया। अब फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे ना, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना, गैरिल मगदूबी, गैर ना मगदूब, जिन पर तेरा गज़ब था। अल मगदूब है और जिन पर तेरा गज़ब था। गज़ब किन पे था? अब देखिए सबसे पहले गज़ब अल्लाह सुब्हाना ताला का शैतान पे था। फिर कौम समूद है, आद है, वहाँ से अगर आप देखते जाए कौम नूह पे, जिस पे अल्लाह ताला का गज़ब है, पूरा कुरान इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है। उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना, उन्होंने क्या किया था? और आखिर में आप देखिए यहूद की बात आती है ना, तो उन लोगों के पास इल्म आया था, नबी आए थे, उनके पास सहीफे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला पे के अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास नबी नहीं आए क्या? हमारे पास कुरान नहीं है? फिर हमारे अमल में कमी कहाँ पे हो रही है? और फिर हम ये कहते हैं कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि ना ही उन लोगों की तरह जिनको तूने गुमराह कर दिया। अब गुमराह को अगर उर्दू का लफ्ज़ है, अगर आप उसको थोड़ा सा खोलते हैं ना, देखिए गुम और राह, वो लोग जिनकी राह ही गुम हो गई, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही ठीक नहीं आया और वो खुद अमल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं आया। जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके पास किताब है। ऐसे नहीं है कि उनके पास तौरा नहीं, लेकिन उनकी किताबें बदल गई हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में इसका मेंशन किया है कि उनके उलमा थोड़े पैसों से आयात को बदल देते थे। अब देखिए कि हमने सबक किससे लेना है? हमने सबक लेना है कि वो लोग जो पहले अल्लाह सुब्हाना ताला के फेवरेट लोग थे, यहूदी, जो जब अल्लाह ताला कुरान में बार बार मेंशन करते हैं ना कि ये लोग चुने हुए लोग थे, जैसे आज हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को चुना हुआ है। और उन्होंने, उनसे क्या गलती हुई थी? उनसे यही गलती हुई थी कि उनके पास इल्म था लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं था। आप देखिए शैतान ने क्या किया था, हम क्यों उससे पनाह मांगते हैं? कि उसने कहा था कि उसने तकब्बर किया था कि मैं इसको सजदा करूं, कि मैं इससे बेहतर हूं। आज हम कितनों से बेहतर अपने आप को समझते हैं। ये हमारी अना ही हमें कहीं नहीं छोड़ती है। मुझे जवाब दिया, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया, फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है? अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे? बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लें कि 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दीन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं,
اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی. صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ. لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو. آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نہ اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے. اب ہر نماز کا حصہ بنا دے. جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا.
हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। और हम इतने आराम से ऐसी चीज़ें कर देते हैं। हाथ दिखाना क्या है, सबसे बड़ा शिर्क है। आप देखें, हम किसी से पूछते हैं कि ज़रा बताना मेरे कितने बच्चे हैं, मजाक से ऐसे ही बस। या हम कहेंगे अच्छा ज़रा बताना मेरे कारोबार में आजकल कोई हालात ठीक नहीं है, कैसे होगा। होता है ना, हमारे अराउंड कितनी दफ़ा हमने ये चीज़ें सुनी हैं। तो किधर बच के जाएंगे फिर? ये चीज़ें अगर हमें नहीं समझ आएगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? हमें तो दुआ के साथ साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला का हम किस किस चीज़ पे शुक्र अदा ना करें। जब कभी हॉस्पिटल के पास से गुजरे ना तो ज़रा देखिए करें कि इतने कमरे भरे हुए हैं, हमारे ही शहर के हैं ना हॉस्पिटल, हर कमरे में कराहते हुए लोग हैं। आप उसके बाहर हैं और चल फिर रहे हैं, इससे बड़ा शुक्र क्या होगा? आप अपने पाँव पे चल के जाते हैं, आप देखते हैं, आप सांस लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के कर्मों की बारिशें हैं हम लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से बस मैं ये कहती हूँ कि जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, जब मैं अपने स्टूडेंट को समझा रही होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, जब तक हमें अपने रब की पहचान नहीं होगी, हमें उसकी अज़मत का एहसास नहीं होगा, हम ये नहीं जान सकते कि हम किसके आगे खड़े हैं। हम तो दुआएं भी इसी तरह से बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। आज से हम अहद करते हैं कि जब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है ना, हमने इस बात को ज़रूर गौर करना है कि हम किस रब के आगे खड़े हैं, और उसकी ताज़ीम जो हमारे दिल के अंदर से उठेगी ना, वो हमारी दुआओं को अर्श तक ले जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बाकायदा कुरान पाक का जो आगाज़ है सूरत बकरा से, इंशाअल्लाह वो करेंगे। बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसी दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया था, और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी, और इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी, और इसी दिन क़यामत भी होगी। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी उसको किया कि जुम्मे के दिन सुबह से तमाम जानवर जो हैं वो क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है। तो इससे मतलब पता है, ये भी लगता है थोड़ा सा कि क़यामत सुबह के टाइम ही आनी है, क्योंकि सूरज तुलू हो जाता है तो तब तक वो देखते सवाए इंसानों जिन्नात के, उनको वो आवाज़ का डर होता है कि वो वक्त तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि काब बिन अहबार से कि उसमें एक घड़ी, उस जुमे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसको पाले जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो, अब अंडरलाइन कीजिएगा, नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह करीम से अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है, तो काब बिन अहबार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये साल में एक घड़ी ऐसी आती है। अब फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तौरा खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, क्योंकि वो तौरा के आलम भी थे, वो यहूदी थे। तो उन्होंने जैसे पढ़ा तो उसके बाद कहा कि नहीं अबू हुरैरा, आप ठीक कहते हैं कि हर जुमे को वो घड़ी है। अच्छा, अब हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो उनको मिलने के बाद, अच्छा काब बिन अहबार जो थे ना, ये अपनी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह को नहीं मिले थे, और ये मुसलमान हुए थे हज़रत उमर के ज़माने में। ठीक है, तो उससे पहले मुसलमान नहीं थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, ये जब वापस आए, आके ये मिलते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने काब बिन अहबार की सारी बात उनको बताई कि इस तरह से मैं उनको मिला था और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी कहा इसका मतलब है कि तौरा में भी जुमे के दिन की फजीलत लिखी हुई है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि मुझे उस घड़ी का पता है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि हदीस जो है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बेशुमार हदीस है, क्योंकि उनका काम ही ये होता था ना, सारा वक्त वो रसूल अल्लाह के साथ रहते थे।
ان کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب ہم کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو دل میں یہ نہیں لیا کریں کہ اچھا اتنے بڑے صحابی تھے، ان کو کیا اس بات کا نہیں پتا تھا، کیونکہ سارا وقت تو نہیں وہ ساتھ ہوتے تھے نا. ڈفرنٹ طرح سے اگر انہوں نے عبداللہ بن سلام سے یہ بات کی تو ضروری نہیں کہ اس وقت ابو ہریرہ ان کے پاس ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے. ابو ہریرہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان بندہ اسے پائے گا جب وہ نماز کی حالت میں ہوگا، اور آخری گھڑی جو ہے وہ تو عصر کے بعد سجدہ کرنا تو منع ہے، تو مغرب سے پہلے تو ہم آخری مطلب نماز کی حالت میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس وقت تو جیسے سجدہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی مسلمان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا. غور کیجیے اس بات کو کہ کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے نا اس کا ٹائم بہت کم ہوتا تھا، تو صحابہ یوزلی پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ پھر انتظار میں ہوتے تھے نماز کے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے نا جس میں ہم انتظار کرتے ہیں اس میں ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا ایسے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہی وہ گھڑی ہے. اچھا، ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یوزلی آدمی جاتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو عورتیں جمعے کے لیے اتنا نہیں جاتی ہیں، یہاں پہ تو الحمدللہ علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں. حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی، اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر لیں گے. اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں. میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے گا. آج اس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.